خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر سید عارف پاشا قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ خلف اکبر سجادہ نشین بارگاہ ہے سرکار لاہوری علیہ رحمت و رضوان. آپ کی خدمت میں ادباً التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو استفادے کا موقع دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والآخرين نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحابته أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف نبيه جلاله وتشريفه وتعظيمه وتكريمه وعليما. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چشم اخوان یہ نظارہ اب تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق و سحر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلق ونور عرشی نبینا مولانا حبیبنا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صدر احترام مشائخ سلسلہ رحمت اللہ مرتبہ سردارگان جمیل احترام محمد محترم علماء کرام علماء اہل سنت برادران ملت، آپ کے لیے ہمارے لیے یہ ایک سعادت کی بات ہے. ایک بڑی کاموں کے سلسلے کی مبارک محفل میں آپ سب کو شرکت کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی شان جس مخلوق سے ظاہر ہوئی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا. اور یہ بات تو طے ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اس سے مراد وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہو گیا وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور اسی سے در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. انسانوں میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، زہریے بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، کئی قسم کے انسان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی خلافت کا آزاد پہننے کی کسی صورت میں ذات مستحق ہے. نہ ان کے ذریعے خلافت کی شان ظاہر ہو رہی ہے اور نہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شان ظاہر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان انسان سے ظاہر ہو رہی ہے تو مطلب ایسا انسان بھی کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نفرات کروانا ہے، جو مومن بھی ہو، جو متقی بھی ہو، جس کو قرآن میں خود اولیاء کے لفظ سے آپ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل، اس کا یہ ایمان، اس کا یہ تقویٰ قبول کے بجائے تو ایسے شخص کو قرآن مجید کے اندر قرآن نے بھری قرار دیا. اور اسی کی جمع اولیاء سورہ یونس کی آیت میں فرمایا گیا سمجھدار ہو کے سنو، آگاہ ہو کے سنو، بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ مومن ہوتے ہیں. وہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کر رکھا ہے. اب ایمان کے تقاضوں میں ہر وہ بات شامل ہوگی جو ایمان کے مطابق سمجھنے کے لیے لازمی ہے. اور تقویٰ کا لفظ ان تمام حقائق پر دلالت کر رہا ہے کہ جن کے بغیر تقوی کا پایا جانا ممکن نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو ایمان شامل ہے، پھر عقائد کی درستگی شامل ہے، پھر اس کے بعد کثرت عبادت اور اس کے ساتھ پھر اخلاص، یہ سب عناصر میں شامل ہو جاتے ہیں.
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत अपनी शान ज़ाहिर करने के लिए कायनात को पैदा फरमाया और कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की शान जिस मखलूक के जरिए ज़ाहिर हुई वो अल्लाह का खलीफा इंसान है, वो अंबिया है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है, वो औलिया है, वो अल्फाज़ दीगर कायनात में आते जाते सब हैं, लेकिन अल्लाह ताला कायनात में जिनकी शान ज़ाहिर फरमाना चाहता है वो अंबिया है, वो औलिया है। उन्हीं की शान दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात को सजाया, 18,000 आलमों को तस्लीम फरमाया, क्या चरित्र, क्या परिंदे, क्या चरिंदे, क्या परिंदे, क्या परिंदे, क्या शराब, क्या मयूर, क्या तुयूर, क्या जिन और क्या फरिश्ते, और क्या ज़मीन और क्या आसमान और क्या चांद और क्या सूरज, ये सब पैदा हुए हैं। लेकिन नबी अलैहि इस कायनात में जिनकी शान ज़ाहिर हो रही है वो अंबिया है, और अंबिया के तवस्सुल से अंबिया का फैज़ान पाकर अंबिया के नूर से मुस्तनिर होकर चमकने वाले औलिया हैं। बात दरअसल फैज़ान औलिया की हो रही है। मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया पर किस कदर मेहरबान होता है, जिसे किया चाहे वही सुहागन। बंदे से अल्लाह ताला जब मोहब्बत करने लग जाए तो वो बंदा न सिर्फ ये कि कामयाब हो जाता है, बल्कि वो बंदा मक़सूद कायनात हो जाता है। अल्लाह ताला का ताल्लुक कायनात का मतलब बन जाता है। वो बंदा न सिर्फ ये कि कामयाब होता है, बल्कि ऐसा बंदा कायनात का मक़सूद और मक़सूद बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने औलिया को अनासिर पर तसर्रुफ़ की कुदरत अता फरमाता है और अनासिर के दिल पर मान हो जाते हैं। अल्लाह ताला जब बंदे की तरफ रहमत फरमाता है तो जाहिर सी बात है कि जब खुदा बंदे का हो गया तो पूरी कायनात बंदे की होगी। हकीकत चीज़ों की सल्लल्लाहु की क्या बाकी रह जाती है उसके बाद। हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने दोनों ने इस हदीस पाक को नकल किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं बंदे को तन्हाई में याद करता हूँ। जब बंदा मुझे जमात में याद करता है तो मैं उससे बेहतर जमात में उसको याद करता हूँ। फिर आगे तक कोई मजमून आता है कि बंदा बारी पर मेरी तरफ आगे बढ़ता है तो मैं जन्म उसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ, और इस तरह का मजमून है। फिर उसके बाद मजमून इस तरह वारिद हुआ है कि बंदा अगर चल के मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। अब अल्लाह तरफ चलने दौड़ने से पाक है, इमाम को शामिल है, इमाम होता है जो भी जैसा भी इसकी शान के लाए हैं। मतलब जब लफ्ज़ को हकीकी माना की तरफ फेरना मुमकिन ना हो तो बड़ा माना की तरफ फेरना वाजिब हो जाता है। मतलब यह है कि बंदा जिस कदर तेजी के साथ मेरी तरफ आता है उससे बढ़ के तेजी के साथ मेरी रहमत बंदे की तरफ बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं बंदे का जिक्र करता हूँ, तन्हाई में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी तन्हाई में उसको याद करता हूँ। जब वो गुरों में जमात में मुझे याद करता है तो मैं भी उसको गुरों में और जमात में याद करता हूँ। अब ये सूफिया और आरिफीन और औलिया की जो कहकशा होती है, सूफी और आरिफ बोलते इसको है जिसको दूसरों से फायदा पहुंचे और दूसरों को उससे फायदा पहुंचे। जिसको किसी से कोई फायदा नहीं पहुंचा ऐसी बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है, और न फिर उससे किसी दूसरे को फायदा पहुंच रहा है ऐसी बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है, उसको सूफी नहीं कहते। सूफी बोलते ही उसको है कि जो अपने पीरों से मुस्तफीद होकर अपने मुरीदों को फैज़याब करता है, जो अपने बड़ों का फैज़ हासिल करके अपने छोटों को वो फैज़ मुस्तकिल करता है। और सिलसिले सादिया में सदिया उसका डेफिनेशन इस तरह है कि वो मुरीदीन के दरमियान और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान फैज़ान क़ादरियत के उसूल का एक जरिया, एक सबब बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे को अपना मुसफ़्फ़र बना लेता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे वापस पाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अपने खुद की मंजिलों से सरफराज फरमाता है, जाहिर सी बात है कि लोग उसकी तरफ रुजू होने लगते हैं। तो जब लोग रुजू होते हैं और अल्लाह वाले लोग उसकी बात करेंगे सिवाय अल्लाह के। सूरह यूसुफ की आयत अल्लाह इल्ला वलिया अल्लाह लाहुल वली वला यामून के जुमले में मुफस्सिरीन फरमाते हैं वली कौन है, तो वली वो होता है जिसको देख के खुदा याद आए। वली वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आए, यानी मतलब ये वली वो होता है जिसके मन पर अल्लाह का चर्चा होता है, जो बंदों को अल्लाह से जोड़ने की बात करता है, जो अल्लाह के जिक्र की तकलीफ करता है, अल्लाह की इबादत की तरफ उठाता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा जो दिलों में पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब औलिया से, सूफिया से, सालिहीन से, आरिफीन से जब लोग वाबस्ता होते हैं तो अब उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, जो तकलीफ होती है, वो तिजारत से मुताल्लिक़ नहीं होती, जाहिर सी बात है विरासत से मुताल्लिक़ नहीं होती, जाहिर सी बात है कि वो
دنیا اور دنیا کے معاملوں سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہوتی ہے۔ جب کوئی استاد، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی مرشد لوگوں کے درمیان الٹو ہدایت کا فیصلہ انجام دیتا ہے تو بات کس کی کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ ذکر کس کا کرتا ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بات کرتا ہے تو اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت وسیلہ بن سکتے ہیں، اس کے ذریعے بندے کو خدا کا عون نصیب ہو سکتا ہے، ان کی بات کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح گھوم پھر کر صالح کا اور صوفی کا اور ولی کا جو مقصد، جو منظور ہوتا ہے، جو اس کا دستور ہوتا ہے، جو اس کی گفتگو کا اور اس کے عمل کا محبت و برکت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں بہت اسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ بندہ جب مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارت فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو محفل میں یاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنے جیسے انسانوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، انسانوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے، انسانوں کے گروہ میں یاد کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے بہتر جماعت میں یاد فرماتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شاعری فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کو انسانوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھلے اعلیٰ کے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے، ملائکہ مقربین کی محفل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اپنے بندے کا تذکرہ ملائکہ مقربین میں ہونے لگے، بھلے اعلیٰ کے فرشتوں میں ہونے لگے، تبھی اللہ اس بندے کی آسان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی قدرت کا ایسا مظہر بناتا ہے کہ بظاہر بندہ سامنے نظر آتا ہے لیکن پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثر ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس تیروں پوچھتے ہیں اللہ کو گرچہ رخوں میں عبداللہ کو، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، زبان عبداللہ کی ہوتی ہے، اللہ اس کا مظہر کرتا ہے۔ اس کے بعد محترم بندہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا دور اس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہوتا ہے، کثرت ذکر کی وجہ سے۔ جب بات کثرت ذکر کی نکل رہی ہے تو بہت انتہائی اہم پہلو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت پیر بخاری شاہ صاحب علیہ رحمۃ و رضوان ہوں، ان کی سلسلہ عالیہ کے مشائخ ہوں، دیگر سلاسل کے کوئی مشائخ ہوں، کوئی صوفیہ ہوں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی کو جاری کرنا، ذکر الہی کو نافذ کرنا، یہی تو ان کا فیضان ہے۔ اب جب یہاں پر بات ذکر الہی کی آتی ہے تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کا جو دائرہ ہے اسلام میں بہت وسیع ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنا۔ وہ ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر اعمال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر افعال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ذکر ذہن و تصور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کا لفظ، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، اور یاد قلبی طور پر بھی ہوتی ہے، زبانی طور پر بھی ہوتی ہے۔ یاد قائم کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی یاد قائم کرے وہ اللہ کا ذکر ہے، جو چیز اللہ کی یاد قائم کرے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد قائم کرے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جس شخص کے ذریعے اللہ کا ذکر قائم ہو رہا ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میں نام لوں گا سرکار کی رانی میں لوگوں بہت سے آدم زندگی کے دوار شاید رضی اللہ تعالیٰ سرکار بہت رضی اللہ تعالیٰ کا جب نام آتا ہے، بات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آپ کی یاد قائم ہو جاتی ہے تو جب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ہی کو یاد قائم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار وزیر کو یاد کرنا الگ ہے، اللہ کو یاد کرنا الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کو یاد کرنے سے خدا یاد آ جائے اس کو یاد کرنا خدا ہی کو یاد کرنا۔ جس چیز کی یاد قائم ہونے سے اللہ کی یاد قائم ہو جائے، جس چیز کے ذریعے اللہ کا ذکر قائم یاد قائم ہو جائے وہ چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو کے سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کے مبارکہ میں کئی تفسیروں میں سے تفسیر ہے کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں، ہر تفسیر ثابت ہے۔ ایک آیت کی جب کئی تفسیریں کی جاتی ہے تو ہر تفسیر ثابت ہوتی ہے۔ ایک آیت کی ایک تفسیر ہے، دوسری تفسیر بھی ہے، تیسری تفسیر بھی ہے، اور تفسیریں بھی ہیں، تمام
तमाम तफसीरें एंटरटेन साबित होती हैं, एक तफसीर के साबित होने से दूसरे तफसीर का इनकार नहीं होता, सब तफसीरें एंटरटेन साबित होती है। तो अल्लाह नबी के जिंदा इस आयत मुबारका की जिक्रुल्लाह तफसीर में से एक तफसीर ये है कि जिक्रुल्लाह से मुराद क्या है? जिक्रुल्लाह से मुराद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्रुल्लाह दर हकीकत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नामों में से एक नाम है, आपके सिफत के नामों में से एक नाम है। जिक्रुल्लाह से मुराद यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र है का मतलब अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह का जिक्र याद दिलाने वाले हैं। तो मतलब क्या निकला? अल्लाह जिक्रुल्लाह ही मुतमइन्नुल कुलूब। इस आयत मुबारका की तफसीर ये है कि जिक्रुल्लाह से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह का जिक्र है। इस बात में आपका कर रहा हूँ जिक्र का दायरा बहुत वसी है, जिक्र का दायरा बहुत फैला हुआ है, बड़ी गुंजाइश है, वो बहुत फैलाव रखने वाला दायरा है। जिस शख्सियत के जरिए अल्लाह की याद कायम हो जाए वो शख्सियत भी अल्लाह का जिक्र है। जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेता है उसको अल्लाह ही याद आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मौजूदे का जब जिक्र होता है उससे अल्लाह ताला की कुदरत की गायब होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई हदीस पढ़ी जाती है तो बंदे को खुदा तक पहुंचने का रास्ता ही तो मिलता है, और क्या मिलता है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिक्रुल्लाह करार पाते हैं। मुफस्सिरीन ने ये वजाहत की है कि कई तफसीरों में से एक तफसीर है कि जिक्रुल्लाह से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। यहाँ पहुँच के आप मुझे कहने कीजिए कि जो चीज़ अल्लाह की याद को कायम करे वो चीज़ भी अल्लाह का जिक्र है, और जो शख्स अल्लाह की याद को कायम करे वो शख्स भी अल्लाह का जिक्र है। जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ एक इंसानी काबिल ही नहीं है, सबसे लेकर पैर तक बताते हो बदर से नफीस वो खुद अल्लाह का जिक्र है। जिनको दुनिया अब्दुल कादिर अल-गिलानी कहती है वो सिर्फ एक आरिफ कामिल, एक वली कामिल, एक वाइद खतीब और मुसन्निफ और उस्ताद और मुरब्बी और शेख कामिल ही नहीं है, बल्कि वो खुद सबसे लेकर पैर तक अल्लाह का जिक्र है। क्योंकि जब कोई उनको याद करता है तो उसको अल्लाह याद आता है। सरकार मौसम नबी अल्लाह ताला की बात कर रहा था, क्या बात करेगा आपके बारे में? आपकी शख्सियत के हवाले से बात करेगा, आपके सिफात के हवाले से बात करेगा, आपकी तालीमात के हवाले से बात करेगा, आपके औसाफ के हवाले से बात करेगा, आपकी करामत के हवाले से बात करेगा, आपकी निस्बत के हवाले से बात करेगा। तो जिस जाविये से भी वो बात करेगा, जिस एंगल से भी वो बात करेगा, जिस डायरेक्शन से भी वो बात करेगा, जिस सम से भी वो बात करेगा, जिस जिहत से भी वो बात करेगा, तो घूम फिर कर बात अल्लाह ताला की दरमियान में रहेगी। अगर सरकार मौजूदा की बात की बात की जाए तो हुजूर बड़े पीर सरकार की जाते गिरामी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी निशानी है, इतनी बड़ी निशानी है कि औलिया ने उनकी गर्दनों में उनके खतरों में अपनी गर्दनें झुका। अजीज़ान मोहतरम, सरकार मौजूदा रज़ी अल्लाह ताला के औसाफ के हवाले से अगर कोई गुफ्तगू करेगा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को जनता फिरता हुजूर मौजूदा रज़ी अल्लाह ताला की जाते गिरामी को देखेगा। औसाफ के हवाले से देखो तो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का नमूना पाएगा, उसको वहाँ से भी खुदा याद आएगा। अगर करामत की बात करेगा तो सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का पर्चो नजर आएगा, वहाँ से उसको खुदा ही नजर आएगा। बात औसाफ की जाए, करामत की जाए, विलायत की जाए, फैज़ान की जाए, निस्बत की जाए, इल्म की जाए, अमल की जाए, शख्सियत की जाए, दात की जाए, जिस हवाले से जिस एंगल से सरकार मौजूदा रज़ी अल्लाह ताला की बात की जाएगी, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ही आला है। जैसे मालूम हो रहा है कि जो शख्सियत अल्लाह के जिक्र को कायम करे, जिस शख्सियत को देखकर खुदा याद आ जाए वो भी जिक्रुल्लाह है, जिस चीज़ को देखकर खुदा याद आए वो चीज़ भी जिक्रुल्लाह है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करने वालों के लिए बशारत सुनाई कि बंदा जब अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि औलिया व सालिहीन की पूरी जिंदगी जिक्र इलाही से मालूम होती है। वो तो अल्लाह ताला को ऐसा याद करने वाले होते हैं कि जो उनको याद करता है तो उसको भी खुदा याद आ जाता है। कोई दूसरा अहली बाकी नहीं बचता, अपनी जिंदगी में दूसरा दाखिला बाकी नहीं बचता। हज़रत शायद यहाँ बल्कि मुगल सौरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। यानी एक मोमिन कामिल इंसान, एक मुत्तकी अपनी जिंदगी में जिक्र इलाही के अलावा दूसरे कामों को अंजाम देता है, वो कसम हलाल भी तो करता है। जाहिर सी बात है कि उसको भूख लगती है तो उसको खाना खाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो लिबास का मोहताज है तो लिबास पहनता है। जाहिर सी
बात है कि उसको घर की जरूरत पड़ती है, घर में रहता है, सर झुकाने के लिए घर की जरूरत है, सर झुकाने के लिए मस्जिद की जरूरत है उसको भी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है, जब वो मुताहिर होता है, अहल और याद वाला होता है, जब वो याददार होता है तो उसकी शादी होती है, उसकी औलाद होती है, जाहिर सी बात है कि उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। तो कसब हलाल उसको करना ही पड़ता है। कसब हलाल अगर वो नहीं करेगा तो जरूरियत तकमील वो किस तौर पे करेगा। तो हम देखते हैं कि एक मोमिन कामिल, एक मुत्तकी, एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला वो निकाह करता है। जब वो निकाह करता है तो ज़रूरियात उससे वाबस्ता होती है, जब ज़रूरियात उससे वाबस्ता होती है तो उसको फिर कसब हलाल करने की ज़रूरत भी आती है, उसको कसब हलाल करना पड़ता है। हलाल रोटी हासिल करने के जरियों की तरफ, कसब माश की तरफ करना पड़ता है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक जिंदगी में दोनों काम हो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है और निकाह की सुन्नत भी अल्लाह को आती है। फिर उसके बाद जैसे आदमी याददार हो गया तो कसब हलाल फरीज़त पालन फरीज़ा के तहत उसको हलाल रोटी कमाना भी पड़ता है, उसको माश की तरफ तवज्जो करता है। जिंदगी के जो दिन है उन दिनों को गुजारने के लिए जिंदगी की जो बुनियाद है उस बुनियाद के खत्म होने तक के लिए उसको आने के असबाब की जरूरत भी पड़ती है। और इस सिलसिला चला बनता है निकाह करने की वजह से। चुनांचे तसव्वुफ की मशहूर मारूफ मायरनात और इंतहाई फैज़ किताब है अवारिकुल मारिफ। और अवारिकुल मारिफ में हज़रत सैयदना शेख शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से उनके गुफ्तगू की है। ये शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? सिलसिले सोहरावर्दिया के इमाम हैं और हमारे सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला से बराह रास्त फैज़ हासिल करने वाले होते हैं। तो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी की किताब है अवारिकुल मारिफ, वो किताब तसव्वुफ का ऐसा निशान समझी जाती है और तसव्वुफ और तरीक़त में उस किताब की ऐसी अहमियत है कि सुल्तानुल ख़लम कुतुब नकल सादा बंदा नवाब के दराज के जैसे आलिम सूफी ने उसकी शरह फरमाई है। अज़ीज़ान मतलब अवारिकुल मारिफ में हज़रत सैयदना शेख शिहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से गुफ्तगू की है कि एक सूफी के लिए, एक आलिम के लिए हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह को याद करने वाला होता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला, दूसरों से अल्लाह का जिक्र कराने वाला होता है, अल्लाह की याद कायम कराने वाला, लोगों के ताल्लुक को अल्लाह ताला से जोड़ने वाला होता है, लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने वाला होता है। ये उसका ताल्लुक है, ये उसका मनसबी फरीदा है जो अंजाम देता है। वो खिताबत के जरिए जो काम हो सकता है, किताबत के जरिए जो हो सकता है, फैज़ सोहबत के जरिए जो काम हो सकता है और वो काम तरबियत के तलक़ीन और तरबियत के जरिए किसी भी जरिए से जरिया जो भी इख्तियार किया जाए, बहरहाल मनसबी फरीदा तो यही है, करने का काम तो यही है, उसकी जिम्मेदारी तो यही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है। तो हम देखते हैं कि जब निकाह को अंजाम देना है तो दूसरे मज़ाहिब की तरफ अगर हम तफावुत के लिए देखते हैं, दूसरे मज़ाहिब में हम देखते हैं कि निकाह के लिए बहुत सी बात समझा जाता है। हिंदू मज़हब में अगर कोई साधु संत दुनियादारी के ताल्लुकात से बरी हो जाए, अगर निकाह वगैरह के ताल्लुकात से अगर बेताल्लुक हो जाए तो बहुत मुक़द्दस समझा जाता है, तो बड़ी अहमियत के साथ समझा जाता है। हम गिरफ्तारियों में बात देखते हैं कि रहमानियत ईद के समय में मौजूद तो नहीं थी, लेकिन ईसाइयों ने बाद में उसको शामिल कर लिया। जब शामिल कर लिया तो फिर मस्जिद पर मुसल्लत हो गई। अब ये बात है कि इस तरह के मामला को अहमियत देते हैं, निकाह करने में बहुत बड़ी फजीलत की बात समझते हैं। लेकिन आप मुसलमान सूफियों में देखेंगे कि जितने मुसलमान सूफियाँ जो मुक़्तदा बनने के लायक हैं, जो पेशवा बनने के काबिल हैं, यानी मतलब ये कि वो कि जिनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना बन सके। तो यहाँ पर बात बहुत मस्त खलकदारों के मंसूबों की लेकर रहा हूँ कि जो कौम के लिए उसको पेशवा मिली, उनकी फैसला नहीं गलत तरीके से होती है, उनका एक अलग काम है। लेकिन जो सालिकीन होते हैं, जो मुर्शिदीन होते हैं, जो खल्क़े खुदा के दरमियान रहकर उनको हिदायत का फरीज़ा अंजाम देने वाले आलिम होते हैं, अगर उनके हवाले से देखा जाए अक्सरियत मेजॉरिटी मोर देन 90% आपको ऐसे लोग बुजुर्गों की नजर आएगी कि जो मुताहिर हुए, वाक़ई उन्होंने निकाह भी किया, उनको औलाद की भी। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने निकाह भी किया, औलाद की भी, तो माश की तरफ उसको दोस्तों करना पड़ा, जिसको हम दुनियादारी समझते हैं, किसी ना किसी हद तक उससे साथ में पड़ा। तो इस जीवन में बात क्या है, तो बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी मतलब ये बात हज़रत सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी है। किताब का हवाला क्या है? और भी कुछ मारिफ के जैसी कायनात मालिकतुल आरा, जबरदस्त किताब में ये मजमून ये बात ये रेफरेंस भी बहुत मजबूत है और बात भी बहुत पक्की है। और हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को पेश करने के लिए जिस ज़ात गिरामी का सहारा लिया है
वो बात ऐसी बातें गिरानी है कि जब वो कोई बात इरशाद फरमा दे तो उनकी बात के खिलाफ दूसरी बात बोलने वाला दुनियाए विलायत और तरीक़त में अपना कोई मुकाम नहीं रखता, अपना कोई वक़ार नहीं रखता, अपनी कोई सनद नहीं रखता, अपनी कोई पहचान नहीं रखता, अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखता। अज़ीज़ान मुहतरम, शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत बड़े शेख नामी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम अदल खुतबे वक्त हैं, लेकिन उन्होंने हवाला ज़ाती गिरामी का दिया है। वो ज़ाती गिरामी उनसे भी बहुत बड़ा मर्तबा रखने वाली ज़ाती गिरामी है। तो वो ज़ाती गिरामी है सरकार गौसुल वरा कुतुब बगदाद गिरामी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी आवाज़ वालिद से फरमाते हैं, किसी ने नकल कर रहे हैं शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी फरमाते हैं कि किसी ने बुजुर्ग का नाम भी लिखा है, लोगों ने पूछा था फुला बुजुर्ग ने सरकार पिलाने की हुजूर और रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, सरकार पिलाने फिर से किसी शख्स ने पूछा कि सरकार आपने निकाह क्यों फरमाया, उसके पीछे आखिर हिम्मत क्या है। जाहिर सी बात है बोलने वाले का बच्चा यही समझ में आ रहा है कि अगर आप इन मामलों से नहीं होते तो इसका और बेहतर तरीके से अंजाम देते और बात रहकर उल्टो इलाज के काम और बड़े पैमाने पर आप अंजाम दे सकते। ये सवाल आया होगा, सवाल करने वाले बहन के वक्त आया होगा। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी फरमाते हैं कि पूछने वाले ने सरकार रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि आपने निकाह क्यों करवाया, तो सरकार पिलानी पीर ने इरशाद फरमाया, मैं खुद नहीं चाहता था कि निकाह करूं, मेरा खुद ख्याल यही था कि मैं निकाह ना करूं और ये जो हमारे डॉक्टर ने बनाए थे इन फराइज़ को और बेहतर तरीके पर मैं अंजाम दे सकूं, मैं खुद यही चाहता था। और सरकार रज़ियल्लाहु का इरशाद फरमाया कि आपकी समझ भी नहीं सिर्फ की तस्दीक तौसीफ भी होती है, क्योंकि सरकार रज़ियल्लाहु ताला की ऐसी ज़ाती गिरामी है दुनिया विलायत में कि जिनका कौल और जिनका अमल ऐसी अक्सानियत और ऐसी मुताबिकत रखता है कि इसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। जब आप कोई बात बोलते हैं तो बोलते बात में पहले करके दिखाते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने 51 साल की उम्र तक निकाह नहीं फरमाया, 51 ईयर्स की उम्र होने तक आपने निकाह नहीं फरमाया, उसके बाद आपने निकाह फरमाया है। तो किसी यानी आपने फरमाया कि मैं खुद चाहता था कि निकाह करूं, ये तो आपका कौल है और अमल के जरिए आपने इस तरह साबित करना कि 51 साल की उम्र तक आप मौजूद रहे, 51 ईयर्स की उम्र तक, यानी बल्कि तो निकाह के फवाइद हासिल करने की असल उम्र होती है। 50-55 साल की बात तो खैर आधा में मैदान में तो आपको फिर बुढ़ापे से बात करना पड़ता है। जो निकाह के फवाइद हासिल करने का जो असल जब जमाना होता है, जो शबाब का जमाना होता है, उस जमाने में सरकार रज़ियल्लाहु ताला निकाह नहीं फरमाया। 51 साल की उम्र तक निकाह नहीं फरमाया। से फरमाते हैं, मैं खुद ये चाहता था कि निकाह ना करूं ताकि अपने उम्र को मैं बेहतर तौर पर इंतजाम दूं। तो फिर निकाह करने की नौबत क्यों आई, तो खुद सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि एक मरतबा आलमी मिसाल में नबीउल्लाह मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का मुझे शरफ हासिल हुआ। ये आलमी मिसाल क्या होता है? आलमी मिसाल में आलमी हकीकत में क्या है? सरकार रज़ियल्लाहु फरमा रहे हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मुलाकात इस वक्त भी जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार रज़ियल्लाहु का ज़माना तो बात का ज़माना है। तो नबी करीम अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन ताजदार आलम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पहले का ज़माना है। ज़ाहिरी तौर पर मुलाकात करने का तसव्वुर नहीं परेशान नहीं ज़ाहिरी तौर पर, फिर यहाँ पर मुलाकात से मुराद क्या है? यहाँ पर मुलाकात से जो मुलाकात की जो बात की जा रही है दरअसल वो आलमी नासुक की मुलाकात नहीं है, आलमी मिसाल की मुलाकात है। आलमी मिसाल की मुलाकात क्या है? बस वो ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, मुझे बात समझना है, दूसरा किताब आपको सुनना है, मैं बात को इस्तेमाल के साथ समझना भी चाहता हूँ, ज़्यादा फैलाता नहीं। एक करने में आपको समझ लीजिए कि आलमी नासुक और आलमी मिसाल में फ़र्क ये होता है। मसलन आलमी नासुक में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आप और मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस बात पर कितने लोग यहाँ पर, इस मंजर पर कितने लोग यहाँ पर बैठे देख रहे हैं? मैं आपसे कुछ खिताब कर रहा हूँ और जितने लोग यहाँ पर बैठे ये मंजर देख रहे हैं, मेरी आपकी गुफ्तगू हो रही है, दूसरे लोगों के सामने, दूसरे लोगों के गाँव के सामने मंजर है, वो भी देख रहे हैं। ये है आलमी नासुक। आलमी मिसाल का मामला ये होता है कि मसलन मैं आपसे गुफ्तगू करूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और किसी और को मैं नजर ना आऊं, तो इसको आलमी मिसाल कहते हैं। हालांकि आपको मैं नजर आ रहा हूं, आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जिस तरह आलमी नासुक में आप मुझे देख रहे हैं, समझिए आलमी मिसाल में भी आप मुझे देख रहे हैं। फर्क यह है कि यहाँ दूसरे लोग भी देख रहे हैं और आलमी मिसाल में अल्लाह जिनको दिखाना चाहता है वो देख रहे हैं और जिनको अल्लाह नहीं दिखाना चाह रहा है वो नहीं देख रहे हैं। यानी एट ए टाइम कोई चीज या तो हिजाब होती है, एक चीज एट ए टाइम या तो गैब हो सकती
है या मशहूद, जो चीज़ गैब है वो शुहूद नहीं है, जो चीज़ शुहूद है वो गैब नहीं है। लेकिन आदमी के साथ में ये होता है कि एक चीज़ एट ए टाइम एक एतबार से गैब होने के साथ एक एतबार से शुहूद भी होती है। किसी के लिए हाजिर, किसी के लिए गैब, ये मिसाल होता है आलम के मिसाल। इसको अगर आप और आसान के साथ समझना चाहते हैं, बहुत आसान मिसाल मैं आपको समझाऊँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मौजूदगी होती थी। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन हाजिर होते थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते, अर्ज़ मारूफ करने के बाद और गुफ्तगू की सादत हासिल करने के बाद वो चले जाते। उनके जाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इत्तला देते कि अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा कहा। हालांकि सब सहाबा बैठे हुए हैं, लेकिन जिब्रील को तन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, दूसरे कोई देख नहीं सक रहे हैं। आप समझिए ये होता है एक आलम मिसाल का अंदाज। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकार रज़ियल्लाहु ताला की महफिल बात जारी थी। एक बुजुर्ग अली थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आंख लग गई, महफिल बात के दौरान वो सो गए। सरकार रज़ियल्लाहु ताला रिज़वान शरीफ से उतरे, कुर्सी खिताब से उतरे, उनके सामने जाकर हाथ पकड़ कर बैठे। उनको आंख लग गई थी, वो सो रहे थे, उनको नहीं मालूम है कि सरकार रज़ियल्लाहु ताला उनके सामने आकर बैठे हुए हैं। वो तो सो गए, उनकी तो आंख लग गई, उनको खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। और हाज़रीन और सामने देख रहे हैं कि सरकार के नाम कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला उनके सामने जाकर हाथ पकड़ ठहर गए। लोग देख रहे हैं। कुछ देर हुई, मिनट 2 मिनट कौन गुजरा, जितना गुजरा, कुछ देर लगे गुजरे। हज़रत अली थी रहीमहुल्लाह की आँख खुली, उन्होंने एक झटका मारा, बेदार हो गए। उनकी नींद की जो कैफियत थी जाती रही। उन्होंने सरकार रज़ियल्लाहु ताला को अपने सामने खड़ा हुआ पाया तो निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ, निहायत अदब व एहतराम के साथ अर्ज़ गुज़ार हुए, सरकार अभी मेरे ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। तो सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने आकर ठहरा हूँ। तुम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रहे थे और मैं बेदारी में देख रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने इस वक्त तशरीफ लाए हुए। अदीलात मतलब अली बिन हीती हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रहे हैं। ख्वाब में तो आदमी देख लेता है, आँख बंद होने के बाद तो आदमी आसमान के ऊपर का मंजर भी देख सकता है, आलम अरवा का मंजर भी देख सकता है। सोने की हालत में जब आँख बंद हो जाए, आलम हिजाब से जब आदमी की नजर बंद हो जाए तो आलम मनाम में कुछ उसको नजर आ सकता है। लेकिन मैं क्या आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, आलम मनाम अलग है, आलम मिसाल अलग है। आलम मिसाल का ताल्लुक ख्वाब से नहीं होता, बेदारी से होता है। आलम मिसाल का ताल्लुक सुकुन से नहीं होता, समूह से होता है। आलम मिसाल का ताल्लुक जज्बात से मखरूफ होने की कैफियत में नहीं होता, पूरी खुशबंदी के साथ होता है। और सरकार रज़ियल्लाहु ताला से एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा आलम मिसाल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकातें होती रहती थी। आपके लिए कोई नई बात नहीं थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, सरकार रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात फरमाया करते थे। अब ये आलम मिसाल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस्मानी तौर पर आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मुलाकात हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये मसला इस्लामी मसला है। हमारे मुखालिफ मसलक के जो अहले इल्म है, नज़दी वहाबी फिक्र के हामिल, वहाबी नज़रिया रखने वाले जो अहले इल्म है, वो लोग पूरे शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो लोग कहते हैं कि नामुमकिन है कि कोई इंतकाल पाया हुआ शख्स किसी आदमी से जिस्मानी तौर पर मुलाकात करे, ये नामुमकिन है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया, बल्कि सूफिया का तो सैकड़ों हज़ारों मरतबा का तजुर्बा ये है कि दुनिया से पर्दा करने वाले कोई बुजुर्ग या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने किसी उम्मती पर करम फरमाना चाहे तो आज भी जिस्मानी मुलाकात से उसको मुशर्रफ करवा सकते, जिस्मानी तौर पर मुलाकात से उसको मुशर्रफ करवा सकते हैं। लेकिन इस तरह मुलाकात करने से किसी के लिए मरतबे सहाबियत इसलिए साबित नहीं होता कि वो मामला आलम मिसाल का मामला होता है, दूसरे लोगों के लिए यकीन शरई हुज्जत नहीं बनती। तो वहाँ नबीदान पर तरफ बैठने के बाद आपके सामने कि सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं तो चाहता था कि निकाह ना करूँ, मेरी मर्जी तो यही थी कि मैं निकाह ना करूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि सरकार रज़ियल्लाहु ताला के मामले में
जो मुताबकत है, आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि जबान से बोलती, आप बोलने को तो कोई भी बोलता है, 1 घंटे का खत्म मैं भी वहीं पर कर सकता हूँ। जबान से बोलना बहुत आसान है, अमल से साबित करके दिखाना ये बड़े जिंदगी की बात होती है। जबान से तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, अभी जबान से बोलना बड़ी बात नहीं है, किरदार से साबित करना ये मर्द मोमिन का कमाल होता है। और सरकार को हम लोग देखते हैं इस एंगल से भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजा तौर पर जान नायक नजर आते हैं। फरमाते हैं मैं नहीं चाहता था कि निकाह करूं, मैं आपके सामने याद कर रहा हूं, ये तो हजरत है शिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत कर रहे हैं अवानिल मालिक में, ये तो रिवायत है, लेकिन दरमियान में मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमारे सरकार ने जो ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, पहले अमली तौर पर उसको इस तरह साबित किया कि 51 साल से बदल गए। फरमाते हैं सरकार को सरकार फरमाते हैं पूछने वाले के सवाल के जवाब में मैं खुद नहीं चाहता था कि निकाह करूं, लेकिन एक मरतबा आज में मिसाल में मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए निकाह करो, तुम्हारे लिए यही अल्लाह का हुक्म है। तो बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, हवाला भी बहुत मौजूद है, पढ़ने वाले भी एक बहुत बड़े इमाम वक्त वली कामिल इमाम सिलसिला शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी हवाली कुमार में जैसी तसव्वुफ की अहम तरीन किताब में मौजूद है, इरशाद सरकार रज़ियल्लाहु ताला का, यानी बात बहुत बड़ी है तो पढ़ते हमारे से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकार रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, और कई मरतबा होता था सरकार को जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से मुजर्रब फरमाते थे तो फरमाते हैं कि मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, तो सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, मुझे तस्लीम फरमाई, इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए आपने निकाह क्यों नहीं किया। अब आपके लिए अब तक देखिए जो नियम तो अपने का है, लेकिन अब इस वक्त अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया जाता है कि आप इस वक्त निकाह करें। तो सरकार रज़ियल्लाहु ताला से पूछने वाले से कहा, साहिल से कहा, तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। अल्लाह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुनने के बाद उसके बाद फिर मुझे निकाह करना पड़ा। हुक्म खुदा बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना, उसके बाद मैंने निकाह किया। उस वक्त तक मैंने निकाह की तरफ तवज्जो नहीं की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का हुक्म आया फिर मुझे निकाह करना पड़ा। उसके बाद सरकार रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, उसके बाद का जो निकाह है वो रज़ियल्लाहु ताला का वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हमने जिस में देखा उससे तनहा देखा, आज के दौर में हम देखते हैं किसी जब 2 बीवियां होती हैं या एक से ज्यादा बीवियां 4 बीवियां होती हैं, चारों को एक साथ कन्विंस करके लेके चलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वाहे तो कोई भी किसी का फैसला कर देता है, कर देता है, कर देता है, शादी को कर देता है, लेकिन घर में और बतौर हम घर में जब एक से ज्यादा बीवियां हों काम से इस्तेमाल की जब नौबत आए, उसके बाद एक से ज्यादा बीवियों को अगर कोई अच्छे टाइम खुश करने में कुछ रखने में कामयाब हुआ, यकीनन वो कामयाब हुआ, यकीनन उसकी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिक में है। अज़ीज़ान मोहतरम उसके बाद का जुमला सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने ये इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आपने क्या किया, और अल्लाह ताला ने एक नहीं 4 बीवियां मुझे अता फरमाई। और उसके बाद सरकार रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि उन 4 की 4 बीवियों का हाल ये है कि वो अपनी जान से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करती है। यानी एट ए टाइम 4 बीवियां आपके निकाह में है, जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा बीवियां को ज्यादा बीवियां पैदा हो जाती है, क्योंकि कम से कम मोहब्बत में कमी तो आ जाती है, और शौहर का ध्यान होता है, कभी किसी से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, कभी किसी को खुश करने में कामयाब होता है, किसी को खुश नहीं कर सकता, 19-20 का फर्क हो जाता है। लेकिन सरकार रज़ियल्लाहु ताला की 4 के 4 अज़वाज मुताबिक थी, इस तरह आपके साथ रह के खुश थी कि अपनी जान से बढ़कर अपने शौहर नामदार सरकार रज़ियल्लाहु ताला से मोहब्बत करने वाले। मतलब यहाँ से मैं बात को सिमट रहा हूँ, यहाँ बात फैलाने को लिया कि ये बात यहाँ पर बुजुर्गान सूफिया और सालिहीन के लिए है, तो ये मजमून मैंने आपके सामने बयान किया। यहाँ से मैं अपनी बात को समझ रहा हूँ, खत्म की तरफ जा रहा हूँ। अर्ज करने के साथ बात है कि सूफिया के पास मैदान कहीं नहीं है, मैदान बहुत वसी है। हमारे पास जिक्र का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस चीज को देख के खुदा याद आ जाए वो चीज भी अल्लाह का हिदायत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही चीज जिक्र है तो दूसरी चीज जिक्र नहीं, दूसरी चीज
पैदाइश के साथ शुरू होकर रूह निकलने तक अदा होते रहते हैं। उसके लिए कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, बल्कि वो तो आलम अरवा से लेकर आलम मरतब से लेकर आलम उसका सिलसिला जारी रहता है। सलाते दाइमी है, उनके जलवे देखते रहना। नमाज आशिकाना बेअज़ानों पे साबित है। वो शरीयत की नमाज है, तो तकबीर तहरीमा में शुरू होकर सलाम के साथ जाके तरीक़त की नमाज का मामला ये है कि ना उसके लिए कोई तकबीर तहरीमा है, उसके लिए कोई सलाम है। जब तक वो उसकी नमाज न पढ़ी जाए वो नमाज बराबर जारी रहती है। मतलब क्या है, अल्लाह ताला की याद तारीफ करने के तरीके एक नहीं मुताबिक तरीके वो शरीयत के फराइज़ है, वाजिबात है, वो तो पहले अदा करना जरूरी है। अफज़ल इबादत मेरा जो में नमाज है, उसके बाद तो कोई जानकारी नहीं, वो तो अव्वलीन तरजीह उसी के लिए। लेकिन उसके बाद जो फाजिल औक़ात है, उन औक़ात में भी अल्लाह ताला की याद कायम रखी जाए, उन औक़ात में भी अल्लाह ताला का ज़िक्र कायम रखा जाए। आप बोलेंगे किस तरह? बस इसी बात को मैं अपनी बात को करने की तरफ आ रहा हूँ। अभी जान मैं फाजिल औक़ात में अल्लाह ताला का ज़िक्र कायम रखना ये आसान काम नहीं, मुश्किल काम है। क्योंकि दुनिया में देखो बहुत कलरफुल दुनिया है ये दुनिया दिल मोह लेती है। दुनिया के अट्रैक्शंस इंसान के दिल को अपनी तरफ माइंड करते ही रहते हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको भेजा बहुत रंगीन दुनिया है, बहुत कलरफुल दुनिया है। यहाँ दौलत का अट्रैक्शन है, औरत का अट्रैक्शन है, शहवात का अट्रैक्शन है, यहाँ पर जिस्म के अट्रैक्शन है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन मानो दौलत का अट्रैक्शन है, इख्तियार का खतरा है। अब इन सब मामलात की तरफ हम देखते हैं कि आदमी जिनको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। अल्लाह की याद को कायम रखने का तरीका ये है कि आदमी तमाम चीज़ों से दामन बचा कर ज़हन व फिक्र में खल्क़ व नज़र में अल्लाह ताला के ज़िक्र को कायम करने वाला ये है कि वो दिल में अल्लाह ताला की याद कायम करे, ज़हन में अल्लाह ताला की याद कायम करे। उसका बेहतरीन कामिल मुजव्वद मज़बूत मुस्तहकम आज़माया हुआ तरीका ये है कि आदमी तसव्वुर शेख कायम करे। आदमी तसव्वुर शेख कायम करे। तसव्वुर शेख कायम करने का फ़ायदा ये होता है कि दूसरे दिनों की तरफ से उसकी दौड़ पड़ती है। और हमारे सिलसिले साथी आलिया में तसव्वुर शेख कायम करने का मतलब सरकार गौसे पर मुझे तारों का तसव्वुर करता है। जाहिर सी बात है कि जितनी देर में आदमी सरकार गौसे पर को याद करता रहेगा उतनी देर तक दूसरे दिनों की तरफ से उसकी दौड़ पड़ जाएगी। जितनी देर तक आदमी अपने पीर का नाम लेता रहेगा, जाहिर सी बात है कि दूसरी मुस्तक़बिल से उतनी देर तक वो बचा रहेगा। अभी नाम के ऊपर तसव्वुर शेख किया जाए, शेख का तसव्वुर करने से खुदा का कोई नसीब होता है। ये भी मैं आपको सामने कर रहा हूँ कि तसव्वुर शेख मंजिल नहीं है, वसीला है। तसव्वुर शेख मकसद नहीं है, वसीला है। मकसद अल्लाह ताला से पहुंचना है, लेकिन ये ऐसी मंजिल है, ये ऐसी वसीला है कि उसी मंजिल से वो उसी वसीले से मंजिल नसीब होती है। आप भी समझिए कि अगर आप फातिहा सजदे में मसलन तो सरकार मुझे पर मुझे अल्लाह ताला का तसव्वुर कायम कीजिए, यही तरह तसव्वुर शेख। आप अगर किसी दीगर सिलसिले में हैं, अपने मशाइख का तसव्वुर कायम कीजिए। उम्मन दूसरे सिलसिलों में जिस पीर के हाथ पर बैत होती है उसी पीर का तसव्वुर जमाया जाता है। हमारे खल्क़ सिलसिले में बैत किसी के हाथ पे हो, तसव्वुर पीरानी पीर का जमाया जाता है। दीगर सलासों में जिस पीर के हाथ पर बैत हो उसका तसव्वुर जमाया जाता है। बहरहाल तसव्वुर किसी का भी हो, जिस अल्लाह वाले का तसव्वुर भी हो, उस तसव्वुर को अगर आदमी ज़हन में जमाए, तसव्वुर शेख करने को फायदा होता है कि जितनी देर वो तसव्वुर शेख किए हुए उतनी देर तक दुनिया के अट्रैक्शन की तरफ से उसकी तवज्जो हटती है और उस अल्लाह वाले को जब तक वो नजर में जमा हुआ है उसके ज़हन फिक्र में अल्लाह ही अल्लाह होता है। आखिर बात एक बात को समझ कर देता हूँ। साथ दखन हुकूम दखन नजर बजा और बेसुदरा सत्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मंसूबात में फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से अपने पीर का नाम लेता है तो अल्लाह ताला पीर के विलायत का एक हिस्सा उसको अता कर देता है। हज़रत खाजा अब्दुल्लाह के सुल्तान के मंसूबात में जवाब के दिन में वैसे सनद और ऐसे क्या बोला एक काबिल भरोसा मंसूबात है कि उस मंसूबात में जब लिखा गया तो खुद हजरत की खिदमत में पेश किया गया। हजरत ने खुद देखा कि वाक़ईतन उनकी मुराद के मुताबिक वो मकामी तहरीर होने के लिए फिर तरतीब फरमाई। वो किताब है हजरत बंदा नवाज के मंसूबा जवाबुल कलीम। तो जवाबुल कलीम में हजरत बंदा नवाज के खुदा के अर्शद सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से अपने पीर का नाम लेता है तो अल्लाह ताला पीर की विलायत का हिस्सा कसरत से नाम लेने वाले को अता करता है। आप क्या समझते हैं? उठे बैठे क्या गौस की जो तकरार हमारी नमाज़ों पर है, आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये अमल कोई खाली जाने वाला अमल है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि कोई अमल समझ है? मैं मानता हूँ बात खुदा की खुदा के साथ, लेकिन खुदा मिला मुझे रसूल मिला के साथ। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं जिस दिन पीर मिल गया समझ लो उसी दिन खुदा मिल गया। ऐसा नहीं है कि पीर के मिलने का एक अलग दिन है, खुदा के मिलने का एक अलग दिन है। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक का तसव्वुर करने वाला अलग काम कर रहा है,
شامل ہے، ایسا نہیں ہے یا غوث بننا یا علی بننے کے برابر بھی ہے یا رسول اللہ بننے کے برابر بھی ہے یا اللہ بننے کا فرق اس کے رسول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے اپنے پیر کا نام زبان سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیر کی ولایت کا حصہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تصور شیخ قائم کیا جائے، شیخ سے نسبت کو مستحق کیا جائے، اور اگر صادری سلسلے میں تو کثرت سے اللہ کے نام رسول کے نام کے ساتھ ملا کر سرکار موسیٰ کا کلام کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ جس نے بھی کہا ہے بہت ٹھیک کہا ہے، میں مانتا ہوں پاس خدا کے ساتھ، لیکن خدا ملا مجھے رسول اللہ کے ساتھ۔ کس فکر میں ہے جناب حضرت کہیے، الحمد میں کیوں ہے فکر بہت کہیے، کس فکر میں ہے جناب حضرت کہیے، الحمد میں کیوں ہے فکر بہت کہیے، گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہے دل سے ایک بار یا محمد کہیے، گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہے دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ میں گیا تھا دیکھنے محبوب سبحانہ کی شکل، کیا تماشا ہے خدا مجھ کو ملا کر صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ وسلم نبینا مولانا حبیبنا شفیعنا سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت پیر بخاری شاہ صاحب قبلہ قدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی سجادہ نشین علی نبیرہ حضرت مولانا سید غوث محی الدین نقشبندی خالدی صاحب سہیل بابا کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس سے اس مبارک محفل میں نہ صرف ایک یاد فرمایا بلکہ جب مشاہدے بھی ان کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ آپ کی دعوت پر جزاک اللہ خیر فی الدارین وما علینا الا البلاغ۔